After biological classification, few organisms were left, and these are lichens, viruses, and viriates. Let us know something about them. This is one of the chapter from 11th class CBSE board. So let us start. What are viruses? Viruses are disease-causing, acellular, infectious, antigenic, obligatory parasitic nucleoprotein microorganisms that are capable of being introduced into the living cells of specific organisms and have the power to multiply within the living host cell, lies in between living and non-living objects. These are very microscopic and smaller than bacteria also. Okay, you can see small diagram or pictures of a few viruses like HIV, hepatitis B, Ebola virus, influenza virus, rabies virus, bacteriophage, herpes, etc. These are microscopic structure. Structure of virus. A virus has a simple structure without cytoplasm organelles. It has a covering of protein. It contains DNA and RNA. Both DNA and RNA are here, and it contains also a small portion of cytoplasmic contents also. Cytoplasm and protein are also available in virus. Characteristic. They live inside host cell. They can be cultured on living tissue. They are highly specific. The viruses are non-cellular obligate parasites that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once the virus infects a cell, they kill the host cell and take over the machinery of the host cell to replicate themselves. ये ओनली वायरस ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रीफर करेंगे रहने के लिए, और वंस होस्ट सेल को उनके बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट को पूरा इन्फेक्शन करके पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे सारे सेल, और सारे बॉडी पार्ट में अपना ही रेप्लिकेशन कर करके वहीं पे ग्रो करेंगे, और पूरा ऑर्गेनिज्म जब तक डेथ ना हो जाए तब तक ये इनका इन्फेक्शन होता रहता है. तो इसीलिए वायरस बहुत डेंजरियस है. द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय इवानोस्की. इवानोस्की साइंटिस्ट पहले इनका नाम दिए थे इनको वायरस करके, माइक्रोस्कोप में पहले ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया था. इवानोस्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको. टोबैको मोजाइक वायरस जो टोबैको प्लांट में इन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था वायरस को, which were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी ये फिल्टर होके नीचे आ रहा था, मतलब ये बैक्टीरिया फिल्टर से भी और माइक्रोस्कोपिक होगा क्योंकि फिल्टर हो रहा है, इसीलिए इसको बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है बोल के आइडेंटिफाई हो गया. In addition to proteins, viruses also contains genetic material that could be either RNA or DNA. Both DNA and RNA रह सकता है virus में. The protein coat called capsid made of small subunits called capsomere protects the nucleic acid. Nucleic acid material जो है DNA और RNA उसको कवर करके एक प्रोटीन कोट मटेरियल रहता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और स्मॉल यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं. पूरा सर्किल होके इसको पूरा कवर करके बॉडी में रहते हैं. फंक्शन ऑफ वायरस. द मेन फंक्शन ऑफ ए वायरस इज टू डिलीवर इट्स जीनोम इनटू द होस्ट सेल सो दैट द जीनोम कैन बी ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट सेल. During the release, the newly created viruses are released from the host cell either by causing the cell to break apart, waiting for the cell to die, or boarding off through the cell membrane. Different diseases such as chickenpox, influenza, rabies, herpes, smallpox, polio, AIDS, etc. caused by attack of virus. कोई कोई ऑर्गेनिज्म में जब तक ऑर्गेनिज्म किल ना कर दें, उनको डेथ ना हो जाए, तब तक इन्फेक्शन इनका लगा रहता है, और किसी किसी वायरस का दवाइयाँ भी निकल आया है, तो इस वजह से उसका इन्फेक्शन इतना पूरा हैवी नहीं होता. जब तक ऑर्गेनिज्म का डेथ ना हो जाए इतना नहीं रहता है उसका इन्फेक्शन.
और वैक्सीन लगाने से कुछ वायरस को कंट्रोल में रखा जा सकता है, बट कुछ का इन्फेक्शन रोका नहीं जा सकता, जैसे कि एड्स में डेथ हो जाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस दिख रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियो प्रोटीन, बीच में जो है न्यूक्लिक एसिड पोर्शन और प्रोटीन मिला के जो है बीच में उसका, और साइड में जो फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर है उसको वो कैप्सोमियर है, कवर करके, न्यूक्लिक एसिड को कवर करके कैप्सोमियर जो प्रोटीन पार्ट है वो कवर करके रखता है। A simple virus particle consists of nucleic acid core of genetic material enclosed within a protein coat or capsid, और इसके सिंगल एक एक प्रोटीन इंडिविजुअल को कैप्सोमियर बोलेंगे। इन जनरल ऑल प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्लांट्स में ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है, डीएनए नहीं। एनिमल वायरसेस हैव सिंगल और रेयरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है एनिमल्स केस में। वायरसेस, bacterial virus contains mostly double stranded DNA but can also have single stranded DNA or RNA. Then virions. Virions are smaller than virus. Okay. Virions were discovered by T.O. Jenner in 1971. Virions are smaller than viruses which are found to be a free RNA. Only RNA रहता है यहाँ पे, DNA इसका न्यूक्लिक एसिड में नहीं रहता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्टियस इन प्लांट्स ओनली। प्लांट में इन्फेक्शन करता है, एनिमल्स में नहीं। विरियड्स का, विरियड्स लैक द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम विरियड्स। विरियड इन्फेक्शन इज मेडिएटेड मैकेनिकली। दे कॉज डिजीज लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्रिसैंथेमम स्टॉन्ट, cucumber pale fruit, etc. This type of disease caused in plants are due to viroids. डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरियड्स। वायरस और विरियड्स में एक कुछ पॉइंट्स है जो कि डिफरेंस है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन वायरस, बोथ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, बट इन विरियड्स ओनली आरएनए पार्टिकल इज प्रेजेंट। ओके, द न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए इन केस ऑफ वायरस, बट इन विरियड्स इट इज ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। Okay, the protein covering coat is present here, but in virions protein coat is absent. Virus has larger size, virions are smaller than virus. Virus infects all types of organisms, plants, animals सबको infection करते हैं इससे। Virions only affects plants. Okay, this is the main difference. Then lichens. Lichens are symbiotic association between algae and fungi. The algal component is known as phycobionts and fungal component is known as mycobionts. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrient and water for its partner. ये एक पार्टनरशिप एसोसिएशन है algae and fungi दोनों का। algae फूड प्रिपेयर करता है और fungi इसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर और अदर मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, और algae फूड प्रिपेयर करेगा और ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा। इसको लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। जहाँ पे लाइकन ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूटेड वाटर है, वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेशन है, इससे पता चल जाता है। जिस एरिया में वाटर पॉल्यूशंस ज़्यादा हो उस जगह में लाइकेन ज़्यादा ग्रो करते हैं।